Sector Petroleum and Natural Gas, a CSIR, and also Principal Scientific Advisor. We are organizing the International Conference on Green Hydrogen at Vigyan Bhavan from 5th to 7th July. The first major event we are organizing on green hydrogen. So it's a 3-day event which will have expert session, it will have technical session, it will have plenary session, and we are focusing on the entire green hydrogen ecosystem. So we have looked at every aspect, and what we've invited experts to talk about it, to discuss. I've invited the industry to be there, and we are hoping to learn from the wisdom of others. People already have a lot of knowledge. We're calling experts to discuss various aspects of it. That's something. So just a bit of clarity on the incentive we are planning. 2 models you said. On both the models, clarity a little bit. Yeah, so we are rolling out the incentive schemes for under the mission. One incentive scheme is for electrolyzer manufacturing, and second incentive scheme is for the green hydrogen production. Electrolyzer manufacturing is simple. For whoever manufactures and is awarded incentive is selected would be awarded incentive on a per year basis for 5 years. The green hydrogen production, we are working out a couple of models. First model we are coming out with a scheme today, where anybody who is selected and it will be given a green hydrogen, will be given an incentive for the quantum of green hydrogen. Amount you mentioned, what is the amount for that scheme you will be? About 13,000 crores for total amount of incentive is 17,500 crores. So when will be the bids called, and will be the ministry calling its bids, or will you be appointing some agency? We are appointing SECI for the SECI SECI will be again for the, just like the renewable project, SECI will be the nodal agency. Yes, for the bidding part for the incentives, SECI would be the agency. So the second scheme, when can we expect the incentive scheme second to be rolled out? We have, as far as the green hydrogen production, model 1, which is the one that we rolled out. The second one, actually, we are in consultation with because that's a demand aggregation model. So we are working out with the Department of Fertilizers and Refining, Ministry of Petroleum, on the details. Based on that discussion, we will test. So when can we expect the first bids to be called? Very, very short. Thank you, sir. पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, फिर R&D है करीबन 400 करोड़ का, और बाकी फिर कई अदर कंपोनेंट हैं जिसमें तो हम रोल आउट तो अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ रोल आउट होता जाएगा. फॉर एग्जांपल अब हम इंसेंटिव स्कीम रोल आउट, सबसे बड़ा जो ज़रूरी था स्कीम मिशन में कि इंसेंटिव स्कीम जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो रोल आउट किया जाए, वो हम कर रहे हैं. साथ ही R&D रोड मैप है, तो R&D पे काफ़ी काम हो चुका है. उस पर एडवाइजरी ग्रुप है हमारा, एडवाइजर हेड करते हैं, वो अब उसके फाइनलाइज करने के पॉइंट पर है R&D रोड मैप को, और जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा उसको फिर हम शुरू कर देंगे उस पर R&D करना. तीसरा कंपोनेंट है पायलट प्रोजेक्ट्स का. तो पायलट प्रोजेक्ट्स पर भी हमने जो हमारे 3 बड़े पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो है शिपिंग का है, रोड ट्रांसपोर्ट का है, और स्टील इंडस्ट्री का है, कहाँ पर फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ हो सकता है. तो उन तीनों मिनिस्ट्रीज़ के से हमने बात की है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि पायलट्स किस तरीके से किए जाएँ आपके फील्ड में. तो जैसे ही वहाँ से आएगा उसके बेसिस पे हम स्क्रीन को रोल आउट. सर, ग्रीन हाइड्रोजन के इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा आम लोगों को समझने के लिए बताइए. जी, ग्रीन हाइड्रोजन, जी नहीं बिल्कुल, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे जगह पर काम आ सकता है जहाँ पर जो हम कहते हैं हार्ड टू अबेट सेक्टर. फॉर एग्जांपल, अगर कार है, सिटी के अंदर चल रही है, सिटी में चलाना कार इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ा आसान है, क्योंकि वो आपने देखा भी है, EVs काफ़ी पॉपुलर हो रही है और आसान है, क्योंकि आप घर जाते हैं, चार्ज कर देते हैं, सुबह आप चलाते हैं 100-200 किलोमीटर, फिर आप शाम को जाकर फिर चार्ज करते हैं. लेकिन अगर बस आपको लेकर जानी है या ट्रक लेकर चलाना है 500 किलोमीटर की जर्नी पे या 700 किलोमीटर की जर्नी पे, तो वो लॉन्ग हॉल जो है उसमें बैटरी के साथ अगर EV टाइप की अगर बस हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भारी हो जाएगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो हम ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादातर उन सेक्टर में ज़रूरत है जो हार्ड टू अबेट हम कहते हैं, तो जहाँ पर और तरीके से डिकार्बनाइजेशन इतना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम इसलिए हमने देखा है देश में कि कुछ प्रमुख सेक्टर जो हैं जहाँ पर हम
डिकार्बनाइज कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से, वो है फर्टिलाइज़र, जहाँ पर हम अमोनिया इंपोर्ट करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बनता भी है अमोनिया प्रोसेस में और उसको फिर हम करते हैं। तो वहाँ पर हम कैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइनरीज में ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होता है रिफ़ाइन करने के लिए, तो वहाँ पर हम नॉर्मल हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया, अब आगे फ्यूचर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, CSIR, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये साथ मिलकर पार्टनरशिप में ये इवेंट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन है, 5 तारीख से 7 तारीख जुलाई के अगले हफ्ते की जा रही है। 3 डे इवेंट है, जिसमें प्लेनरी सेशंस भी हैं, टेक्निकल सेशंस भी हैं, और पूरा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम जो पूरा है, और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लार्जली, बट ऑल्सो यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम इंडस्ट्री को भी हमने इसमें इन्वाइट किया है, काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही है एक्टिवली। तो एकेडमिया, एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री सभी इस 3 दिन में मौजूद रहेंगे, अलग अलग सेशन पे। हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नॉलेज है डिफरेंट एस्पेक्ट, जो अलग अलग ग्रीन हाइड्रोजन के अलग, चाहे प्रोडक्शन के ऊपर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हो, चाहे वो R&D पे हो, उस अलग अलग एस्पेक्ट को हम उसको डिस्कस करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि सब सेशंस में हम सीखें, जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, और जो ऑडियंस भी होगी वो भी सीखे, ऑफकोर्स एक्सपर्ट्स एक दूसरे से भी सीखें। ये हमारा प्रयास सर डिटेल थोड़ा कौन कितने लोग आ रहे हैं? हमारा अभी अंदाज़ा है कि करीबन 1400 से 1500 के हमारे टोटल डेलीगेट्स रहेंगे, और इसमें करीबन 75 स्पीकर से ज़्यादा, आई थिंक 100 स्पीकर से ज़्यादा हमारे इसमें हैं, जो उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने तक कन्फर्मेशन हो गई है। सो फॉरेन कंट्रीज से कुछ कोलैबोरेशन कुछ हो सकता है इसमें, या फिर कुछ जो आएंगे लोग उनसे हम लोग टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस? हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ सेशन रखे हैं, कुछ प्लेनरी सेशंस हैं जो कॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव से, जैसे इंडिया का पर्सपेक्टिव तो है ही है, लेकिन EU का पर्सपेक्टिव भी है, ऑस्ट्रेलिया का पर्सपेक्टिव है, US का पर्सपेक्टिव है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पर्सपेक्टिव है, जापान का पर्सपेक्टिव है। तो हमने कुछ देशों को चूज़ करके, जो हम सोचते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में काफ़ी काम हो रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से हमने कुछ कंट्री के साथ हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, और उनके साथ फिर हम सीखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं उसमें, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारी भी ऑफकोर्स अपने भी नॉलेज है कि किस कंट्री में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे हो सकता है। सर जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें अभी सेकंड फेज भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट फेज है कुछ अलग से उसकी कुछ कर रहे हैं हम लोग, उसमें कितना पैसा उसमें लगाने की कोशिश कर रहे नहीं, हमारा जो टोटल बजट है ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में करीबन 20,000 करोड़ है, 19,700 करोड़ है। उसमें से इंसेंटिव स्कीम ही अकेले 17,500 करोड़, और अगले 7 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं कि 1 साल का है, 20 मैं पूरे 7 वर्ष का बजट बता रहा हूँ। तो इंसेंटिव स्कीम 17,500 करोड़ है, बाकी करीबन